I'm having a I'm having a plate of such Kashman right there in the city of Jalandhar. He said no. Which can you brief me about the reason? And he has given us a task to complete. And the task is that he said that Google that how much Indian government invest in such cash. That is the things. Indian government invest in such cash. What they have. No worries. We shake our hands, we exchange our number, and to more of the fact that dhaba was belongs to him, and we get a free treat. That's when the chole bhature was served free to us. Who doesn't love free food? So again, when we turn back to our hotel, we have a task to complete, and we googled. Surprise! 2018, Indian government invested $600 million to bring agriculture commodities and mineral products from such country. Now, again, my surprises comes that India is one of the richest in agriculture. Then also we are investing in such cash funds. What's that? And there the things is rooted to me in the deep connection of such cash funds that what they have that we have to invest. 2019, the investment again happened. 2020 was not the year due to pandemic. It has struck. 2021 reforming. 2022 again we are getting back. And there is the things I will love to start off. I'm going to show a small video to you. I said about chole bhature, the chana, and mostly we say that it comes from Kabul, right? But the fact doesn't stay there. Actually, it's never been. The things associated with Kabuli chana in general language, it was not happen. To give a small story before I showing you, I will be sharing with the video with you. What happened? The Kabul people, due to the at the time of the British Empire when they are ruling India, they used to come to trading for the small financial part, like the microfinance. Currently, the personal loan, they required only your voter ID card or Aadhaar card. They're going to give you a loan. The same thing, they just need to know where you stay, and they just need to know whether your neighbor know you or not. Done. They will give you 1 anna, 2 anna, 3 anna, 4 anna at that point of time, and they say that what are the time period you are going to return back to us. Generally, people say 1 month. During the 1 month, what you are going to do, what you are going to give in terms of interest, the people say we are going to give you wheat, we are going to give you banana, we are going to give. That's the thing they used to trade, but they have to show something to the British government that why we are right there. And this is the hidden things they actually do this kind of small financial trading. And they say that we bring chana from Kabul and we sell it in India. That was never been the part. So that small story had changed it, and that is the things. Entire foreign concept, foreign investment policy has changed for me once I have been googled and said that Indian government invested this big amount. Such cash one is depend on two of the recession-proof pillar. The first pillar is agriculture. The second pillar in mines and minerals. How reforming? Before I get back to the figures, let me share a video with you. I will request all of you, please listen very carefully to the figures which I have shown right there, because it's going to be really helpful for you to understand what I'm saying right now. So there's a screen sharing, and where it goes. I hope that my screen is visible to you all. Is it visible? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. So let's see where such cash one stand in terms of business. आप लोग जूस लेंगे या खाना खाएंगे? Sorry, thank you. No need of juice and khana right now. Let's concentrate on the video. There we go.
there's a huge opportunity to do something really big in Saskatchewan. Saskatchewan gives us a competitive advantage to better integrate our businesses by being located right in the heart of where our supply is. The whole plant-based ingredient sector is booming right now. The demand is there. In terms of capacity, we're about to double, and I'm very excited about the future. You want to be international, you want to be in agri-value, Saskatchewan is the place to be. I think Saskatchewan today is kind of like a technology gold rush. It's the new frontier where people can go and invest and set up tech companies. We're interested in stable fiscal regimes with strong resource potential and a strong and skilled workforce. And that's what we've got in Saskatchewan. Our dealings with the Saskatchewan government has been very constructive. There are very clear guidelines set out on how to move a project from exploration through feasibility to production. I look at the opportunities here and they're endless. This is a good jurisdiction to be in. So there's lots of figure out there. There's a lots of facts out there. There's lots of things maybe we know, maybe are new for us. And what are the new things? Saskatchewan's, the recession-proof economy of Canada. And that's the reason Saskatchewan is known as one of the strongest economical provinces in Canada. Agriculture. As the figure shows, the same thing, 40% of the agriculture lands there in Saskatchewan. 42% of the entire Canada's agriculture facts is right there in Saskatchewan. And what are the products? Wheat, durum, mustard seed, lentils, peas, oats, they all. And one question to ask, isn't it they are warm condition products? Just ask yourself, wheat, when they cut up in India, mostly after Baisakhi, April, that point of time, India was really hot in climatic segment. What this hot products doing in a cold country like Canada? The questions come piling when we try to get the best of the facts. The facts comes that if you're going to see the geographical factor where Canada is, you can always witness to a part that Saskatchewan comes under the sun belt. In summer, 4:30 a.m. they have that. It goes up to 10 to 10:30 in the night. That's the reason Saskatchewan is the sunniest province in the entire Canada. The fact will come, the fact will definitely, and you need to challenge the facts. Google, what's the sun segments out there in Canada? How it is definable to the fact that Saskatchewan holds approx 1 lakh natural water bodies. We know that purity, freeze, purity, melt. Even it is in winter conditions, they have snow. And there is a certain conditions, the snow stay up to April. But that doesn't making a life challengeable. Saskatchewan is the province which is well equipped to face the winter condition because they have all their offices, school, colleges kept on running in the winter conditions. So the snow freeze, then they melt, and the purity of the water never get drained out due to the fact of their 1 lakh natural water bodies. The sun, the water, and that's the reason it makes Saskatchewan the most fertile land in the entire Canada. Saskatchewan is mostly the Great Plains, they're the plain lands. It doesn't get many of the, like they don't have that high end of hills and things. Definitely they have few, but that doesn't
are generally occupying of the major spaces. Now I'm going to share a screen with you again. There's going to be a PPT contain of the facts and figure why I claim my challenges to be valid. Just do let me know whether it is visible or not. Is it visible? Yes, sir, it's visible. Thank you. Thank you. That's the part. Saskatchewan is a great place to study, work, and live. Every province will say the same. Saskatchewan, smaller cities are full of big opportunity. We need to identify where. Immigration policy, no one can challenge Saskatchewan. What are the facts? Definitely. And living, quality education, excellent opportunity. I start off again, the strongest economy. So as I said that 42% of the entire Canada's agriculture has been catered to Saskatchewan. How big Indian government invest is being one of the leading segments in terms of the agriculture. They invest in Saskatchewan to bring wheat, Durham, mustard seed, lentils, and the endless and one of the priceless natural resources, oil, potassium, diamond, and the rarest. They have the best A grade. They are the A grade uranium quality in the global index. And they're the biggest exporter of global. So you can always rely on to the fact that if an economy stand on two figures, one is agriculture, another is energy and resources, they are recession proof. Because these are the two basic necessity of a human nature. So the reason an economy is strong is a reflect upon to the fact because economy doesn't grow by freezing the money. Economy will always grow by rotating the money. Who are responsible to rotate this money? They are the labor market. So one thing as clear, the stronger the labor market, the stronger the economy, or vice versa. I mistaken it. The stronger the economy is, the stronger the labor market. So that is the reason my claim about you have both job during and after studies. How good we are into the job segments, we are going to discuss on the latest slides. Again, 40% of the cultivated farmlands are big things to say about. There is a certain things right there in Canada that many of the families of other provinces is actually depend on the natural resources of Saskatchewan for their living. This is a unique thing because we all know that agriculture is a part, they required certain things to survive. And if they are getting it from Saskatchewan, that's when they are doing a business or related business of the resourcing factor from Saskatchewan. Saskatchewan has declared the best place to invest in mining. So you can always calculate upon the international economy, which is inclined towards Saskatchewan. Saskatchewan is not only about business. Saskatchewan is also about the beauty. It is known as the land of living sky. The northern light, the sunshine, the sunrise, you say about the lakes, it's beautiful factor. And definitely we will love to witness how Saskatchewan looks in my later videos. And this is a certain things we can always challenge up to the fact that in winter, definitely we have temperature going down to -40, -45. Even a certain corner is -50. That's common in Canada. That's really common in Canada because we know that each and every province have a similar kind of winter. It's not certain things that we can always say about Saskatchewan having a harsh winter condition. Who doesn't have that? If you're going to challenge upon 2019, 2020, British Columbia has witnessed the biggest snowfall. So there is always a place, but we can always improvise to the fact that yes, even if they have, that's a quite common because Canada is a cold country. And they are the sunniest province. Every season they have sunshine. Saskatchewan, the big group, the big land, and with a population of approx 12 lakhs, they have one of the best land to man ratio in Canada. And definitely when I say about a best place to live, work, and study, no one can come near to the Saskatchewan portfolio. Let's see what I say about the job opportunity. I will go back to 2020 where we have a data from Statista, and it has been clearly shows, I'm again calculating province, that Manitoba is the lowest unemployment rate province, the second goes to Saskatchewan. So the lower the unemployment rate, the higher the chance of getting a job. So who are having a higher unemployment rate than Saskatchewan? They are Quebec, British Columbia. Then comes the national average of Canada. There we go, Nova Scotia, Ontario, New Brunswick, and highest goes to Alberta. Now, if I'm going to take Alberta, I'm going to take the lowest Manitoba, and I'm going to take the second lowest Saskatchewan and move on to the next slide. That is median after tax per family. Now, median after tax per family, taxes is not what we can claim. So let go of the tax and what remains
Saskatchewan is having a 10% higher than the national average. Alberta have the highest median after tax income, but Alberta also having the higher ratio of unemployment rate. Manitoba, they do have the lower ratio of the unemployment rate, but they are also one of the lowest in terms of median after tax income. There comes Saskatchewan's the second highest in provinces and 10% higher than the national average. So I can always count upon to the fact why international students should move to Saskatchewan. It's not only about probability of getting a job with a median after tax income high rocking, to the fact that no one can come near to the Saskatchewan challenges for the PR factor. SINP, Saskatchewan's Immigration Nominee Programs. Only three things what you need to keep in mind. Any students coming to you and asking, I want to go to Canada for settlement, the first and the only option right now visible is Saskatchewan. Why? To make it very clear, only 3 pointers I'm going to count. Number one, minimum 1 year of program. That's why Saskatchewan's 1 year programs is sell like hotcakes. Second, a job related to your programs. What I said starting, you don't need to sell my programs, sell the province, all my programs will get sold. Why? Because all my programs are proportionate to the growth of the province. They actually someone, I said, majorly influence the growth of the province, because we have a strategic philosophy. We are going to bring international students very limitedly. We are going to educate them, and we are going to utilize the education for the development of the province. That is the reason Saskatchewan's working hour segment counts upon only 780 hours of experience, that to work during your study count. So that means all the part-time jobs your students will be doing in Saskatchewan during their study time is counted. 780 hours only. 1 year of program, public institutions, they have a 1 year of stay back. But do the stay back required? I feel no. How? Let's calculate. Canada, we know that it's generally for a 1 year studies, they come with a 2 semester. 1 semester consists of 4 months. So that is 4 plus 4, 8 months. And student enjoy up to 2.5 to 3, some people say 4 months of study day, they stay back during their study time. So if we are going to count upon 1 year of study, I will say that 2 semester, that is 8 months. During the 8-month time, they are eligible for 20 hours a week. So 20 hours a week means 80 hours in a month. 80 hours in a month means 80 hours into 8 months, 640 hours they have already covered while they are studying, because part-time jobs are counted. The job hours are counted. What remains to touch? 640 minus 780, it remains 140 hours to touch. They generally enjoy 2.5 to 3, even 3.5 to 4 months of study break. I will count upon only 1 month. Out of those study break, if they work only for 1 month, during the study break, they are eligible for 40 hours a week. So 40 hours a week means 160 hours in a month. It's done. They have their entire post-graduation work permit available to fill up any gaps if they have. 3 criteria matched. The 4th criteria, just wait for their results. Done, dusted, share with the portfolio of who is giving you the offer for the job, apply for the SINP. I hope no one can come near to the policy which Saskatchewan has adopted. Now, these are the facts which generally we say, generally we have for you. That is the reason Saskatchewan's becomes handy for you. Now, there in Saskatchewan, we have many institutions apart from Parkland, Cumberland, and Great Plains. They also offers. But do you know why this regional college system is regarded as one of the best education system in Canada? There are other institutions in Canada, Saskatchewan's, leave Canada. Why this institutions, the Saskatchewan college is having an upper edge? Let me show you to the facts where we stand. This is the system what we follow. Previously, we know that Cumberland College, they have 3 international campus to offer. Currently, do they have? Great Plains College also 3 international campus to offer. Currently, they have the same. Parkland College offer 1. So you can check upon previous segment what used to happen. Suppose I take a case of a student's Kindersley campus with a programs called Continuing Care Assistance, completed and waiting for their job settlements. Now Nipmuc have a job in hold for a Continuing Care Assistance. Previously, as the college was not exchanging their ideas, so the job options remained vacant right there in Nipmuc, and the students struggled right there in Kindersley.
Currently, they have all merged. So what is happening in Nipwin, even each and every students of every campus knows about, because it moves in the same segments. Placement, the faculties, industry visit, internship, job rolling, immigration opportunities, voluntary job, technical assistance, all the things has been changed, has been merged, has been moved together. So is someone sitting right there in Swift Current know exactly what is happening right there in Nipman, because all this system is been parallelly generated. There is nothing different right now that I want to move there, I want to move there just because they have this edge. There is nothing called edge. There is all group up. So this is one thing that in Canada, no one having this kind of the 7 international campuses right there in a system. Not only that, we have 12 domestic systems to support. Exactly what is happening? Cumberland College, Great Plains and Parkland College, all combined, they have 19 campuses, 7 for international, 12 for domestic. All clubbed. You can check upon, no university, no institution has the same. That is the reason they have a bigger spread. And that is the reason they are having one of the most competitive factors about each and everything's happening in a single province. Now, I will say why this system moves in a fair way. Now, currently, if I want to say about we having 17 numbers of participants right there in this group, in this Zoom session, science backed us and say that if we are going to follow rigorously, if we are going to follow and we are going to concentrate for the next half an hour, we can recognize each other face for the next 4 to 5 months. Maybe we don't know where we have seen each other, but definitely we can always say about, okay, I have seen this guy. Now, if we are going to do this for the next 4 to 6 months on a regular basis, science back and say that we are going to have a memory for a lifetime. We can recognize each other. That's the things what our faculty do. Our faculty know our students by their faces. We have a classroom size of 12 to 15. That's on the higher side. Just think about a faculty coming regularly, interacting with the same 12 to 15 group of people, and they are exchanging their facts and figures. The smaller the classroom size, there's more trend of students to open up. The more they open up, the more discuss about their factors which they are unable to understand, whether it's in terms of programs or language. There we have extra hours which is not structured. The more interactions create a friendly life. The more friendly they are, there's a relaxed atmosphere. That is one of the plus point where international education considered a relaxed atmosphere to be. Because you are leaving all the segments and coming to a new atmosphere where you need to gel up. The sooner you gel, it's better for you. All my programs, they are skill related. They are the implementations of theory in practical world. 99% of the students of Saskatchewan colleges have stamped either satisfied or very satisfied in terms of the methodology what we use. 98% students have a job inside even before they graduate. How and why? Because the faculty, they are the industry expertise. Those who are actually there to create job is teaching you how to get jobs. Saskatchewan is also known as the umbrella province. What actually it means about the diversity. No language, no religious influence. Each and every language and every religious is equally and enthusiastically celebrated in Saskatchewan. There's the sense of community commitment what we give. Saskatchewan is one of the cheapest provinces to stay due to the low taxes system. And there we explore a lot of possibility of high saving. And definitely with the comfortable zone of the SINP, Saskatchewan Immigration Nominee Programs, no one can come near even touch the Saskatchewan airports. There's a whole structure about Saskatchewan, how the things we work, how the things get it. Let me just introduce to you on a formal basis of the individual campuses. Great Plains College, 3 campus, Swift Current, the 3rd sunniest place in Canada. Swift Current is one of the most important commercial, you can say, city in the southern Saskatchewan. Warman, just 15 minutes drive from the biggest city of Saskatchewan, Saskatoon.
Kindersley is famous for their arts, heritage, recreation opportunities. And what I will request whenever your students are going to Saskatchewan, just ask them to enroll in the newcomer welcome center. That's the additional benefit they are going to get. Whatever happening in Saskatchewan, community services, whatever happening in Saskatchewan, job opportunities, post-graduation settlement, the PR options, medical, they have all it. Just they need to register. Each and every information will come via either message or the email in their respective job box. Parkland College, one of the, you say about, this is the first regional college of Saskatchewan. Sixth largest city, Yorkton, beautiful place, plenty of opportunities surrounded by plenty and really enjoyable recreation opportunities. Cumberland College, most of their campuses right there in the beautiful cities. They are mainly known for the tourism segments. Nipwin is known as Pulse of Pine, beautiful pine forest, hot spring. Malford is famous for their local shopping. Tisdale, though it's a very small town, but they have ideally grown themselves in one of the best medical sectors right there in Saskatchewan province. So let me introduce you to the program and my claim that you don't need to sell my program. You don't need to sell my program, just sell my programs, how it's valid. International economy is inclined towards Saskatchewan. That I said, the best place to invest in mining. Canada agriculture. Now there is an office, there is an administrator. There is a point we are saying we are giving meeting charge. I will request please. Thank you. So that's the programs we are offering. There's an office, there's an administrator, and with this kind of business opportunity coming, Saskatchewan is booming in terms of infrastructure. We have administrative assistants or office administration for you. Agriculture equipment technician, the biggest production of agriculture in Canada, who waits to get the opportunity. We have a technician, and Saskatchewan, they are the biggest productions of the agriculture equipment in entire Canada. Agriculture science, Saskatchewan is growing in terms of the technology requirement for the agriculture factory, and we are having agriculture programs for you. As I said, Saskatchewan is booming in terms of infrastructure development, and we have a business technical program. Saskatchewan, by virtue, is also known as the business province because of the sheer export segment in terms of both agriculture and mines and mineral resources. We have a business technical program. There is a human need, and post-pandemic, the entire concept of medical security has changed, and we have continued care. We have occupational health and safety in the medical term. There is a specialization program in terms of known as the healthcare scope. What's that? Anyone who is thinking about to make a movement in 2-star onwards, restaurant, hotel, hospital, you can say about the cooking arena of schools, colleges, they're required to have the certificate of healthcare scope. And that is the primary object we want to introduce to the international students because of the ongoing demand. Canada is not a rail friendly. Canada is a road friendly. And who is going to carry the big productions of agriculture and mines and minerals? We have to depend on the heavy equipment, truck and transport systems. They are the technician program we are offering to you. Power engineering, the heart of our programs, no denial of it. These are all the one-year programs. UG requirement comes as a grade 12. Most of the programs like administrative assistant, agriculture science certificate, building system technicians, power engineering, they comes as a 60%, no subjects below 50. Power engineering comes as 65%. All remaining comes as a 55%, no subjects below 50. IELTS requirement to get सर ये ऐसे बाइफरकेशन के साथ नहीं है कि ये प्रोग्राम कौन सी कॉलेज में है करके? एकदम है मैम, मैं ना आपको प्रोग्राम मैट्रिक्स शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा डिटेल्स है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे तीनों कॉलेज, बिकॉज वी आर टेकिंग कॉमनली एडमिशन प्रोसेस एट सब्सक्रिप्शन कॉलेजेस providing campus. Suppose if someone is saying that where are we going to study, so we can say that you have an option in Yorkton, comes under Parkland College. You have an option in Swift Current, comes under Great Plains College. You have option in Malford campus, comes under Cumberland College. First, our first motto will be Saskatchewan College. So again, to give you a more clarity, let me brief up the thing. Administrative assistants, 6.5, no band less than 6.
it will be comes around a costing of 16,000 Canadian dollar. And 60% of subjects below 50, what I said, anyone can apply for this program. It is available in our old terms, Parkland, Cumberland, and Great Plains, both, all three. But in our new terms, Saskatchewan colleges, Yorkton, Malport, and Swift Current campus. Agriculture equipment technicians, anyone with a grade 10, I repeat, grade 10, 55%, no subjects below 50, 6.5, no band less than 5, Yorkton campus. Agriculture सर, science, एक मिनट, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन इक्विपमेंट टेक्नीशियन का प्रोग्राम 10th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट भी ले सकता है 10 स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट भी ले सकता है। और एग्रीकल्चर उसकी एज 16 इयर्स होगी तो चलेगा? नहीं, यहाँ पे एक है, क्योंकि वीजा फाइलिंग में हम लोग डिपेंडेंसी वीजा नहीं दे सकते, so we bet on students who have completed their 10+3 or 10+2 and we are going to consider the percentage of grade 10. तो कैसे करेंगे सर? किसी भी बच्चे ने, जिसने, सोच लीजिए कोई भी हो, वो 12th क्लियर किया है और उसका 10th में 55% वो सब्जेक्ट below 50 है, देखना। एक मिनट सर, मुझे मेरा हेडफोन पहनना, मारो हेडफोन रोज कौन लाई जाएंगे थी, एक हेडफोन आपको ना मने धारना हेडफोन आप मने हेलो, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, कैसे करेंगे 10th स्टैंडर्ड वाली जो रिक्वायरमेंट है? आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, आई सर अभी? काफी लो आ रही है। हेलो, हेलो काफी लो आ रही है, पहले बेटर आ रही थी। हेलो, आई डोंट नो, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है या सबको यही, मतलब वॉइस काफी डीम सुनाई दे रही है। एक मिनट सर, अभी आई आपको मेरी? अभी आवाज, हाँ ठीक है, मैंने सेटिंग चेंज किया। ठीक ठीक है, है, तो सर इनका कैसे करेंगे? जैसे अगर हमारे पास कोई 10th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट है और उसको अप्लाई करना है ये एग्रीकल्चर के लिए, तो उसकी कंपलसरी एज यानी उतनी 18 इयर्स प्लस होनी चाहिए, या उसके पास 12th स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, या ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो 12th में फेल हुआ हो और हमको उसका 10th स्टैंडर्ड के बेस पे अप्लाई कराना है? तो देखिए, मैं आपको 10th के ऊपर बेस करके ऑफर लेटर दे दूंगा, ठीक अगर है। क्राइटेरिया मैच करती है। लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि आप भी जानते हैं, जब फाइलिंग के टाइम में मोस्ट ऑफ ग्रेड 12 दे रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड, अगर मैं ये बात को ज्यादा फोर्सफुली करूं तो इट वोंट बी कम्स, because we can't say what are the parameters they are considering. We are there to give you offer letter on the 10th base. Yes, all the considerable fact will be on the basis of grade 10. लेकिन फाइलिंग के लिए डिपेंडेंसी वीजा एक फैक्टर आ जाती है 16 इयर्स या 17 इयर्स वाली, तो वो होगी नहीं, तो उसके लेकर ग्रेड 12 की एक रिजल्ट की भी रिक्वायरमेंट आती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द परसेंटेज, लुक इनटू इट। ठीक है सर, वीजा का हम देख लेंगे। इन शॉर्ट ग्रेड 10 के स्टूडेंट का जो है 12th में भले ही परसेंटेज कम हो, पर 10th के बेस पे आप एडमिशन दे दोगे? हम आपको ये प्रोग्राम ग्रेड 10 के ऊपर बेस करके देंगे। ठीक है एग्रीकल्चर। और 10th में आपको कितने परसेंट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए? 55%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50। 55%, नो लेस देन 50। और आईएलटीएस का स्कोर क्या चाहिए सर आपको सारे प्रोग्राम के लिए? मैं 6 पॉइंट, देखिए सचकाशन में पावर रखने के लिए 6.5 चाहिए, पहले से फैक्ट है। तो ये जो है आती है आपकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन, इसमें आती है 6.5, नो बैंड लेस देन 5। ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये आती है 6.5, नो बैंड लेस देन 6। ओके। एग्रीकल्चर साइंस 6.5, नो बैंड लेस देन 6। ग्रेड 12 में प्योर साइंस, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो, या सुपर मेडिकल के जो है वो, इसका मतलब है मैथमेटिक्स होना जरूरी है विद साइंस। किस में सर, किस में? एग्रीकल्चर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं हाँ, एग्रीकल्चर सर आप प्रोग्राम लिस्ट शेयर करिए ना, सॉरी मैंने आपकी स्क्रीन बंद कर दी। नो वरीज, मैं फिर से करता हूँ इसको, गौर कीजिएगा। सर आप मुझे दूसरा ये बताइए कि अभी आपके हिसाब से ये 6.5 5.5 वाले जो बच्चे हैं, एक मॉड्यूल 5.5 है, उस पे वीजा आ रहे हैं? मैम मेरा सीट अभी तक वैकेंट नहीं है, मैं इतना कहूंगा। और आपको भी मालूम है सस्कैचुअन रीजनल कॉलेज
आपके जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, उनकी वीजा सक्सेस रेशियो अभी तक सबसे हाई? हाँ सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई 5.5 वाला बच्चा आया, 6.5 5.5, उसको ऐसा है मेरे को बस खाली जाना है, तो आपका सर क्या अनुभव रहा है कि सस्केचुआन में हम उसको आपकी कॉलेज में प्लेस करें तो क्या एक 5.5 पे वीजा निकल सकता है तो हम उसे प्रमोट करें? मैं ना आपको वीजा फाइलिंग की जो रहती है, एसडीएस, नॉन एसडीएस, और मेरे पास एक और है सेमी एसडीएस, वो मेरा बनाया हुआ है, तो उस चीज पे अच्छा। मैं एकदम लास्ट में बात करेंगे कि नॉन एसडीएस, एसडीएस और सेमी एसडीएस क्या नहीं, फैक्टर है। मैं सर आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रही हूँ ये एकदम सवाल। मैम, एकदम। उसका रीजन है कि मेरे यहाँ पे मैं बात करूँ तो पिछले 1 साल में खाली एक ही बच्चे का 5.5 बैंड पे मैंने देखा है वीजा निकला है, और वो मेमोरियल यूनिवर्सिटी का निकला है। बाकी किसी का 5.5 बैंड के ऊपर पिछले 1-1.5 साल में हमारा वीजा नहीं निकला है, राइट। और बच्चे भी हालांकि नहीं कराते हैं, पर सर आप तो, हम तो क्या है, छोटे लोग हैं, अरे आप मैडम तो क्या पूरे बात है। इंडिया का करते हो, तो क्या मैडम पूरे बात इंडिया का क्या सिनारियो है, क्या बात दूसरे? हाँ। बात में छोटे बड़े को यहीं पर ही रोक लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहस रुकने वाली नहीं होगी। और दूसरी जो बात आती है कि आपने तो हम लोग के पास एप्लीकेशन भेजे नहीं है। सर हमने ये बात जरूर मेरे को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए कि आपने तो जी। एप्लीकेशन भेजे नहीं है, तभी आप लोग का जो टेस्टिंग जोन है वो वैकेंट रह गया है सस्कैचुअन रीजनल कॉलेज पे, तभी आपके तरफ से ये सवाल आ रहे हैं। अगर आपने जी। भेजे होते तो आंसर आपके पास होता कि जितने भी 6.5 नो बैंड लेस देन 5 वाले, मैं कह रहा हूं इट इज नॉट कंपलसरी दैट वी आर गोइंग टू काउंट अपॉन द फैक्ट्स, बट you can take a chance upon, on definitely the chance will be on the higher end. Why? मैं वो जो चीज मैं कह रहा हूँ सेमी हमारी एसडीएस वाली फैक्टर में बताता हूँ वो क्या है, मेरी बनाई हुई है। एसडीएस क्या है हम जानते हैं, नॉन एसडीएस क्या है वो भी जानते हैं। अगर किसी का 6.5 नो बैंड लेस देन 5 आता है, प्लीज आस्क द स्टूडेंट टू सबमिट द एंटायर ईयर फीस एट ए गो। ओके। पूरी साल की फीस एक साथ सबमिट करने के लिए बताइए। हम्म। मेरे पास जो एनालिसिस है, एटलीस्ट 8 to 9% की चांसेस हाई हो जाती है वीजा मिलने की। सर सस्कैचुअन में हम तो सभी स्टूडेंट्स का, चाहे एसडीएस है नॉन एसडीएस है, फीस और जीआईसी 1 साल का भरवा देते हैं सर। मैडम आपने तो मेरे को एप्लीकेशन भेजे नहीं, मतलब बात तो वहीं पर आके रुक जाती है। भेज सर के देखिए बिल्कुल, क्या होता है। मैं मानूंगी इस चीज को कि हमने एप्लीकेशन आपको नहीं भेजे, अभी उसकी बात पे भी मैं आऊंगी कि क्यों नहीं भेजे हैं करके, जरूर, और वो जरूर, भी मैं आपसे पूछूंगी कि हम कैसे जरूर, ये करें। बाकी जरूर। सस्केचुआन पॉलिटेक्निक में हमने सस्केचुआन से ट्राई करा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैंने हाँ। आपसे क्या कहा मैम, एक चीज में फिर से चीज को सर रिपीट कर। अभी मैं आपको फिर से दूसरा एक सवाल पूछती हूँ। आपके सर एकदम। ज्यादातर प्रोग्राम पार्कलैंड को छोड़ के, पार्कलैंड का एक पीजी डिप्लोमा है, बाकी के ज्यादातर प्रोग्राम है 1-1 साल के सब सर्टिफिकेट। सब हमारे पास ज्यादातर क्राउड है बैचलर डिग्री करा हुआ, ठीक है। ये अभी बीच में आपके एक राजकोट से भी एक लेडी थी, रिप्रेजेंटेटिव थी, वो भी हाँ मेरे हाँ से हाँ, मिलने के लिए आई थी, मैं नाम सॉरी उनका भूल गई हूँ। खुशबू। खुशबू। हाँ हाँ, जी। तो वो भी आई थी, मैंने उनको भी पूछा था कि सारे 1-1 साल के सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं, तो हाँ, वीजा सर अभी रिजेक्शन आता है ना, तो वो ज्यादातर इसी चीज को लेके आता है कि कोर्स को लेके, कि भाई जरूर। तुम्हारा कोर्स ऑलरेडी तुमने बैचलर किया, तुम लोअर लेवल का क्यों ले रहे हो, लॉजिकल प्रोग्रेशन हमको नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली, सब्जेक्ट ओवरलैप हो रहे हैं, तो ऑलरेडी पढ़ा है फिर क्यों पढ़ने जा रहे हो। तो मैं एग्जैक्टली। वही पूछना चाहती हूँ कि सारे प्रोग्राम तो 1-1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स है, तो क्या कैसे करें सर हम लोग? एकदम बहुत आराम से करते हैं इस चीज को। जी बताएं। बच्चे आराम से कर लेते हैं। एक बच्चा आपके पास आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके, अब वो बैठा हुआ है, आपने मेरे को फोन लगाया कि अभिषेक जी ये बच्चा मैकेनिकल का बैठा हुआ है, इसको मैं क्या दूं। मैंने आपसे तुरंत कह दिया हेवी इक्विपमेंट ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट में दे दो, एकदम पूरा मिल गया है प्रोग्राम। तो आपने कहा कि इंजीनियरिंग कर रखा है, मेरी सवाल बच्चे से तुरंत जाती है व्हाट दे नो अबाउट हेवी इक्विपमेंट ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियन। आंसर आता है दे डजंट नो एवरीथिंग। पहली पॉइंट आ जाती है मेरी, इट्स ए कंटिन्यू एजुकेशन। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, हेवी इक्विपमेंट ट्रक, इट्स गोइंग टू ए स्पेशलाइजेशन फैक्टर, इट्स गोइंग टू ए स्पेशलाइजेशन फैक्टर ऑन ए सर्टेन थिंग जो वो फेमिलियर है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करके आपके पास आता है, आप फोन घुमाते हैं, मैं आपको ऑफर करता हूं बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियंस। He knows about the civil engineering part, but he doesn't have a much knowledge or in-depth knowledge about the building system technical facts. That comes the continue education. मेरी हर एक प्रोग्राम पैरेलल एजुकेशन है, कंटिन्यू एजुकेशन। करेक्ट।
ये रीजन है कि मैं तभी कहता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं इवन इफ दे कंप्लीटेड ग्रेजुएशंस, आई विल सिंप्लीफाई। रिजेक्शन क्यों होती है थोड़ी सी अगर हम लोग गौर करें कि एक ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भेज दिए, पहले तो है क्या वो प्रोविंस में एडेप्टेबल है वो प्रोग्राम, क्या वो प्रोग्राम करने के बाद बच्चे को उस कंटेंट के ऊपर जॉब मिलेगा उस प्रोविंस में, और जॉब की रेशियो क्या है, सस्टेनेबल है या नॉन सस्टेनेबल है। अगर हम इस चीज को गौर करके देखते हैं तभी मैंने कहा कि मेरी प्रोग्राम बिकेगी। क्योंकि आप अगर मेरे प्रोविंस को बेचते हैं तो आपने किसको भेजा, एग्रीकल्चर को बेचा, आपने किसको भेजा, आपने बेचा एनर्जी एंड रिसोर्सेस को, आपने बेचा एक ऐसे प्लेस को जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लाइन है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसमें, माइंस एंड मिनरल्स में। तो जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कर रहा है इसका मतलब है बिल्डिंगें तैयार हो रही है, ऑफिसें बन रही है, तो आपको रिक्वायरमेंट आती है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक चीज कीजिए, किसी ने बीएड किया हुआ है इंडिया से, वहां पे इसको टीचर का जॉब मिल जाएगा कनाडा में डायरेक्ट? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। तो नेक्स्ट जॉब पैरेलल टू ए टीचर जॉब इज एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। अभी मेरे पास बीएड के कैंडिडेट आके एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करते हैं, उनका वीजा लगता है। ओके। एंड वी आर गिविंग ए अनपैरेलल, क्योंकि ये रिसेशन प्रूफ प्रोविंस है, दे आर हैविंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेबर मार्केट, they are having the infrastructural growth unparalleled है, PR पॉलिसी डिफाइन की हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर बेस करके। 780 घंटे आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, वो भी आप पार्ट टाइम जॉब के ऊपर बेस करके। कौन सा प्रोविंस देगा आपको? कोई नहीं देता है सर, दे ही नहीं सकता है। क्योंकि यही वाली एक फैक्ट है कि एक जगह पे क्राउड है, दूसरी जगह पे क्राउड नहीं है, एक जगह पे जॉब है, दूसरी जगह पे भी जॉब है, लेकिन आप क्राउड में जाओगे तो आपकी जॉब की जो रेशियो है वो स्प्लिट हो जाएगी। There comes such cashmans की जो पॉलिसी है, इट इज चेंजिंग डे बाय डे। सो यही रीजन कि आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बच्चे आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सोच लीजिए कॉमर्स किया हुआ है और वो मेरे को बताएगा कि मैं कंटिन्यू केयर करना चाहूंगा, मैं आपको पहले बता दूंगा मत भेजो, वीजा रिजेक्ट होगा। बराबर। लेकिन किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स में और वो मेरे पास आता है बिजनेस डिप्लोमा करने के लिए, आई ऑलवेज से कम एंड ज्वाइन। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स को, प्लीज, आई डोंट नो, आई एम नॉट ए कॉमर्स बैकग्राउंड, लेकिन थोड़ी सी जो नॉलेज रखी हुई है, दे हैज ए वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और एक और बड़ी चीज मैं सबके सामने बताता हूँ, थोड़ी सी गौर कीजिए। ग्लोबली अगर हम लोग ड्रॉप आउट देखें इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए, सबसे हाई रेशियो रहती है बीकॉम स्टूडेंट्स की। लेकिन हर एक बीकॉम स्टूडेंट्स का एक ही फैक्टर है कि एमबीए तो हमारे लिए बना हुआ है। सो दिस इज आल्सो थिंग्स। और अगर हम लोग ग्रेजुअली इसको मूव करें तो सबसे ज्यादा विटनेस आती है, अगर हम लोग आईआईएम की रेशियो देखें, दे आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉर द एमबीए। What they prescribe is, we know engineering, now we are defining about selling the engineering. That's why we are joining the IIMs. ठीक है सर, मैं समझ गई। तो इन शॉर्ट हम वीजा में ये लिख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए रिलेटेड है पर ये पूरा नया है, इस पे मैंने कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं लिया है, इसलिए मुझे ये लेना है, ऐसा करके हम सेल कर सकते हैं। ये मैं समझ गई। ठीक है सर। तो अगर कोई ग्रेड 12 का स्टूडेंट आता है और बाकी के सारे जो प्रोग्राम्स है उसमें हमें परसेंटेज कितने चाहिए? 55% चाहिए सारे प्रोग्राम में, खाली अपने को पावर इंजीनियरिंग में चाहिए 60%, बराबर? नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं प्रोग्राम मैट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा, नॉट टू गेट मच। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोग्राम में 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, एचएस साइंस में 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियन में 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, कंटिन्यू किया 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, पावर इंजीनियरिंग 65% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, बराबर। बाकी सब में 55% नो सब्जेक्ट्स बिलो। और सर अगर किसी ने बीई मैकेनिकल करा है पर 12th में उसका खराब परफॉर्मेंस था, पर बीई मैकेनिकल में 7 सीजीपीए है, कोई बैकलॉग नहीं है, तो आप क्या देखोगे? 12th देखोगे कि बीई देखोगे? कौन से प्रोग्राम्स के लिए? पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग के लिए देखिए हम लोग ग्रेड 12 देखेंगे। अच्छा, यानी हमें फिर उस केस में स्टूडेंट का भले बैचलर में या डिप्लोमा में अच्छा परफॉर्मेंस है, फिर भी ग्रेड 12 ही देखना है। नाउ यहाँ पे आपने एक और बात कही, डिप्लोमा, राइट? तो मेरी एक और एजुकेशन सिस्टम आपके लिए इजी होती है, वी कैन कंसीडर 10+3 आल्सो। ओके। अगर 12th के बाद किसी ने डिप्लोमा किया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेड 12 पॉलिटेक्निक का जो रहता है, तो वहां पे हम लोग उसका मार्क्स भी कंसीडर करेंगे। एक और चीज, जैसे कि अगर किसी ने, जैसे कि मैंने कहा 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50% है, या हमारे जैसे कि बिजनेस डिप्लोमा में
अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसका ग्रेड 12 में 60% की जगह 58% है, हम लोग कंसिडर कर लेंगे उसको। पर अगर बी किया है तो नहीं करोगे? मैडम दैट इज केस टू केस के ऊपर, कितना डेफिशिएट करता है ग्रेड 12 में वो देखना है मेरे को। सर ज्यादातर मैं बताऊं हमारे यहाँ बी किसी ने किया होगा ना मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट, ये लोग साइंस ले लेते हैं, साइंस में इनके पिट पिट के मार्क्स कम आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं टका, 40% आ जाते, फिर ये लोग चले जाते कंप्यूटर में, मैकेनिकल में, सिविल में, तो सिविल में इनका परफॉर्मेंस सही रहेगा पर ग्रेड 12 का इनका खराब रहेगा। तो ये मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ कि भाई बी किया है तो बी हम देखें कि फिर हम ग्रेड 12 देखें, तो हम वैसे असेसमेंट करके भेजे। असेसमेंट का यहाँ पे मैं बताऊंगा, इट विल कम ऑन केस टू केस बेसिस। ठीक है, केस टू केस बेसिस में तो हमारे फिर हम आपको प्री असेसमेंट भेज देंगे। एकदम मैडम, मैं हर समय यही कहता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, प्रोफाइल आया आप डाल दो, मैं आपको घंटा 2 से 2.5 के अंदर बता दूंगा कि क्या इसमें। मैं सर मेरी टीम के साथ आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, तो मेरे लिए ये लोग वेट ना करें, इनके पास कोई प्रोफाइल है ये डायरेक्ट आपको भेजे। नो वरीज मैडम, ऑलवेज देयर। और ये हमारे जो 1 साल के प्रोग्राम थे, हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम है, यूथ केयर वर्कर 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, 6.5 नो बाय लेस देन 5, और बिजनेस डिप्लोमा जिसको अभी डिस्कस कर रहे थे। यूथ केयर वर्कर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सोच लीजिए साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, टेलर मेड प्रोग्राम है, आंख बंद करके भेजो, वीजा नहीं है सर। बराबर, साइकोलॉजी के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट आप भेजिए यूथ केयर वर्कर के लिए, जीएनएम के लिए, कंटिन्यू केयर के लिए जीएनएम भेजिए, ठीक है, आराम से आ जाएंगे। हमारे पास हेल्थ केयर कुक का एक प्रोग्राम है, ग्रेड 10, अगर किसी ने 10th पास किया हुआ है ना, ग्रेड 10, हम लोग वो स्टूडेंट को ले लेंगे, 55% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, ग्रेड 10। कौन सा प्रोग्राम सर? कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट? नहीं मैडम जी, हेल्थ केयर कुक, हेल्थ केयर कुक। ग्रेड 10 के ऊपर 2 प्रोग्राम है, एक है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन, दूसरा है हेल्थ केयर कुक। सर ये बताइए, ये नहीं मेरे लिए नया प्रोग्राम है, ये मेरे को शेयर करिए स्क्रीन से। हाँ, ये नीचे वाला हेल्थ केयर कुक लिखा है। हाँ देखिए, अभी क्या हुई, पैंडेमिक के बाद 2 स्टार ऑनवर्ड जो होटल्स आ गए, आपके जो रेस्टोरेंट हुए या आपके हॉस्पिटल में हो गए, फिर आपके एल्डरी केयर, चाइल्ड केयर, स्कूल्स लेवल, यहाँ पे जो कुकिंग सेगमेंट्स में जो इन्वॉल्व है। देखिए, कुकिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बेलन ले लिया हाथ में, वो जो भी चन्नी ले लिया वो कर रहे नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू कुकिंग। अगर किसी को अप्लाई करना है, दे हैव टू बी सर्टिफाइड हेल्थ केयर कुक, तभी ये प्रोग्राम इंटरनेशनल एरिना में इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और कहीं पे भी मतलब होटल में भी अगर कोई शेफ के लिए जाता है, दे नीड टू सर्टिफाइड दिस थिंग। सो इसको लेकर ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे, खासकर बहुतों के पास होम साइंस लेते हैं, म्यूजिक लेते हैं, पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं और क्यों लेते हैं वो खुद भी नहीं जानते। बराबर। तो आज उन स्टूडेंट्स को आप कर सकते हैं मोटिवेटेड। बहुत सारे जो चीजें, जो कुलिनरी मैनेजमेंट करके बैठे हुए हैं, जो कुकिंग करके बैठे हुए हैं, दे हैव नोवेयर टू गो, दे कैन टेक अप द हेल्थ केयर कुक प्रोग्राम्स एंड गो देयर। इसमें कोई बैचलर का भी कोई फैक्टर नहीं है कि अगर बैचलर के स्टूडेंट्स है जो इन्होंने होटल मैनेजमेंट, कुकिंग या कुलिनरी मैनेजमेंट किया हुआ है, दे कैन इजीली अडॉप्ट टू दिस प्रोग्राम। ग्रेड 10 के ऊपर बेस करके जा सकते हैं, 12th के आर्ट्स के स्टूडेंट जा सकते हैं, इट्स ओपन। सर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं क्या बता रही हूँ सर, एक एक करके आप हमको थोड़ा रेलेवेंट बैकग्राउंड बताइए ना, कि जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इसमें हम तो अभी तक ये सोच रहे थे भाई 12th कॉमर्स वाले बच्चे को ही भेज सकते, पर आपने जैसे बताया कि बीएड वालों को भी तुम भेज सकते हो, तो वैसा क्या क्या रेलेवेंट बैकग्राउंड है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए? मैडम मैं तो कहूंगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट को नहीं भेजना, इसमें कॉमर्स वाले को नहीं भेजना, मत भेजो आप उसको। छोड़ के देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज मेरे पास जो जो प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम डेडिकेटेडली कुछ मतलब कंटेंट के ऊपर है, जैसे कि सोचिए बिजनेस प्रोग्राम्स। अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्स, क्योंकि एक चीज जो है, खासकर गुजरात की अगर मैं बात करूं, आपके वहां पे ग्रेड 12 में ना स्टैटिस्टिक्स होता है। हाँ, दैट इज रियली अ गुड थिंग फॉर ए कॉमर्स स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट इन बिजनेस प्रोग्राम्स। तभी मैं कहता हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को आप बिजनेस सर्टिफिकेट या बिजनेस डिप्लोमा में ही भेजो और कहीं पे मत भेजो। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स गए, साइंस के स्टूडेंट्स गए,
ग्रेजुएट जिन्होंने किया हुआ है वो गए, बीएड वाले स्टूडेंट्स आप भेजे। ठीक है सर, चलिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है 6.5 ईच 6 और इसको चाहिए 60%, नो लेस देन 50, करेक्ट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। और आपके यहाँ पे गैप बैकलॉग का कोई चक्कर नहीं? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों बैक है, क्यों बैकलॉग है। हाँ, वो कर देंगे। हाँ, और दूसरा है ओपन स्कूल, ओपन बोर्ड, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑल आर एक्सेप्टेड। NIOS ओपन स्कूल और एक्सेप्टेड। सब। अच्छा, ये बताइए, NIOS आप एक्सेप्ट करेंगे, पर क्या आप NWAC एक्सेप्ट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट एक्रेडिटेशन कमीशन का बोर्ड? मेरे ख्याल से वो भी केस टू केस है, वी नीड टू टेक ए पायर एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए। NWAC का आया तो टीम आप लोग व्हाट्सएप पे डाल के प्री असेसमेंट करवा लेना, ठीक है? NWAC का कोई बोर्ड आया तो। हाँ, वो अगर हम लोग का होता है देन वी नीड टू टेक ए पायर अप्रूवल, क्योंकि हमारे पास जो है मतलब हमारे पास जो है ऑल एजुकेशन पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है सर, चलिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का क्लियर है कि इसमें आर्ट, साइंस, ग्रेजुएट और बीएड वाले स्टूडेंट को भेजेंगे। 6.5 ईच 6 पॉइंट, 60% चाहिए, 50 से ऊपर चाहिए। फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आपको ग्रेड 10 भी चल जाएगा। ग्रेड 10 भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्राम्स है, हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ले लेते हैं जिन्होंने ग्रेड 2, क्योंकि हम लोग 10th के ऊपर बेस करके देते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती है सर, यानी मैं कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका यहाँ पे फादर का एग्रीकल्चर लैंड है, उसका घर का एग्रीकल्चर का बिजनेस है, तो मैं उसको कर सकती हूँ ये रेकमेंड? आप कर सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बोलूं, कॉमर्स स्टूडेंट्स को मत डालिए, जिन्होंने ग्रेड 12 में कॉमर्स किया हुआ है उनको मत डालिए। ठीक है। आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, जिन्होंने सोच लीजिए कोई भी सेगमेंटरियल इंजीनियरिंग की हुई है, टूल्स को लेकर डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक्स वगैरह वगैरह, दे कैन कम। इवन एग्रीकल्चर बेल्ट के स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। ठीक है। 6.5 no band less than 6.5 6.5 no band less than 5, grade 12 55%, no subjects below 50। ठीक है, क्लियर सर, चलिए। एग्रीकल्चर साइंस, हाँ। एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट ग्रेड 12 नॉन मेडिकल का स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, नॉन मेडिकल। ग्रेड 12 नॉन मेडिकल यानी कि PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या सुपर कॉमर्स को डाले कि नहीं डाले? नहीं, सिर्फ नॉन मेडिकल या सुपर मेडिकल, और कोई सर नहीं। सुपर मेडिकल यानी आप क्या कहना चाहते हो? PCM भी दोनों? यस, मैथमेटिक्स 12th में होना जरूरी है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी ग्रेड 12 PCM, PCB या हमारा डिप्लोमा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, या फिर हम सर बी एग्रीकल्चर को भी डाल सकते हैं इसमें, BSc एग्रीकल्चर वाले को, कि उसका नहीं निकलेगा वीजा? प्रोवाइडेड दे हैव मैथमेटिक्स इन ग्रेड 12 और तो वो तो नहीं होगा सर, वो तो नहीं होगा। और दे हैव टू अपीयर फॉर ए ऑनलाइन मैथ एग्जामिनेशन। वो कैसे आपकी होगी खुद की कि फिर वर्चुअल सर? हाँ, वर्चुअली होगी। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ए टाइम एंड मेंटर, उस समय वो दे देंगे। कंटेंट ऑफ द कोर्स विल बी प्रोवाइडेड। चलिए ठीक है, ये क्लियर होगा। एग्रीकल्चर साइंस के लिए ग्रेड 12 PCM तो चाहिए, यानी मैथ्स तो चाहिए। डिप्लोमा एग्रीकल्चर चलेगा। अगर BE एग्रीकल्चर किया है तो 12th में मैथ्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपसे हम कंसर्न करेंगे और उसको मैथ्स की एग्जाम दिलवाएंगे। एग्जैक्टली। इसमें सर अपने को चाहिए 6.5 ईच 6 बैंड और 60% नो लेस देन 50%, करेक्ट? एग्जैक्टली। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 साल का है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 1 साल का है, एग्रीकल्चर साइंस 1 साल के है। ठीक है, ये सब 1 साल जो तो भी बात टीम करेंगे। ये सस्केचुआन में 1 साल के प्रोग्राम इसलिए होते हैं ज्यादातर क्योंकि 1 ही साल के बाद PR हो जाता है, तो सस्केचुआन में ज्यादातर प्रोग्राम अपने को 1-1 साल के ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की, अपने स्टूडेंट की जो मेंटालिटी होती है कि मेरे को 1+1 चाहिए, 2 साल का कोर्स चाहिए, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसको समझाना पड़ेगा कि सस्केचुआन में कोई दिन प्रोग्राम 2 साल के नहीं होते हैं, 1 साल के होते, क्योंकि 1 साल बाद सस्केचुआन ही ऐसा स्टेट है जिसमें PR पॉसिबल है। ठीक है, वो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझाना पड़ेगा। PR कैसे पॉसिबल है, सर ने अपने को आगे के सेक्शन में अच्छे से समझाया है, 780 आवर्स वाला। ठीक है। दूसरा एक और चीज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाँ। देखिए, सिर्फ PR वाली जो पॉलिसीज आती है उसको छोड़ के भी एक और चीज आप समझिए कि यहाँ पे सस्केचुअन कुछ एजुकेशनल पार्ट है। एजुकेशनल पार्ट क्या है कि आपको अगर, क्योंकि मेरी हर एक प्रोग्राम कंटिन्यू है, तो फिर से आता हूँ, बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियन की बात करता हूँ। ये प्रोग्राम को भी ग्रेड 12 के PCM वाले स्टूडेंट ही जाएंगे। 60% नो सब्जेक्ट बिलो 50, 6.5 नो बैन लेस देन 6। तो यहाँ पे बिजनेस सर्टिफिकेट कोई भी जा सकता है जिसके पास मैथमेटिक्स है ग्रेड 12 में, या कॉमर्स का स्टूडेंट्स है।
6.5 no band less than 6, 60% no subjects below 50. सर Con- कॉमर्स का आपने बोला कॉमर्स वालों के पास मैथ्स नहीं होता। सर मैडम मैंने कहा आइदर मैथमेटिक्स और फ्रॉम कॉमर्स। सर मैं वही तो बता रही हूँ कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है उनके पास अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक होता है, तो वो चला लोगे आप बैकग्राउंड इसमें। हाँ मैडम, मैंने Building वही system, कहा कि हाँ। आइदर आपके पास मैथमेटिक्स होना है या आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है चलेगा। इसमें बीई सिविल करे सर, डिप्लोमा सिविल, बीई सिविल, किसमें? बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियन में। यस यस, बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियन में हम लोग डिप्लोमा सिविल कर सकते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग सिविल कर सकते हैं, ग्रेड 12 पीसीएम करेंगे। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर। एग्जैक्टली, प्रोवाइडेड दे हैव मैथमेटिक्स इन ग्रेड 12। आर्किटेक्ट का तो हो गई, कोई नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग का ठीक है, और नहीं अगर मैथ्स है तो मैथ्स का टेस्ट। यस। और इसमें सर क्या क्या ALTS का स्कोर चाहिए? 6.5 6.5 और 60% नो लेस देन 50%। एग्जैक्टली। ठीक है सर, चलिए 5वां प्रोग्राम है बिजनेस सर्टिफिकेट। इसमें हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट को करें, राइट? या जिसके पास मैथ है, या PCM। पीसीएम नहीं, आर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स होते हैं, वो भी नहीं आके सर, हमारे वाले को अच्छा इकोनॉमिक्स है, मैडम। 12th आर्ट्स। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, मतलब मैं ये कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको। मेरे पास अच्छा। प्रोफाइल्स आती है जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उनके पास इको मैथ होते हैं, इकोनॉमिक्स और मैथ होते हैं, तो दे कैन कम अप विद दिस प्रोग्राम। ठीक है सर, इसमें आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? 6.5 नो बैंड लेस देन 5, आपकी आती है 60%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50। ठीक है, चलिए सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद है कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट। ग्रेड 12 आर्ट्स, ग्रेड 12 नॉन मेडिकल, ग्रेड 12 मेडिकल, आर्ट्स या GNM, नर्सिंग, डेंटल, हो जा सकता है। सर डेंटल भी आ जाता है, मिल जाता है। और लेकिन सर एक हाँ, बात है, हाँ, मैं एक चीज हाँ। कहता हूँ कि मेरे पास है प्रोफाइल, हम लोग ने डाली है, वीजा भी है, लेकिन उनको ना मेरे मतलब वो दिल से नहीं मांगते कि दे शुड कम इन दिस प्रोग्राम। अच्छा, तो आपका ये है। और सर ये वाले जो प्रोग्राम होते हैं जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन करके आते हैं, आ फिर जाएंगे। ऑप्टोमेट्री करके आते हैं, तो इनका कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट पॉसिबल है? उनके लिए हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेट ज्यादा प्रेफर करवाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है सर, वो बाद में बात करते जब आएगा तब। हाँ, तो हाँ, कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट में इन शॉर्ट ये नर्सिंग जैसा ही प्रोग्राम है टीम। एग्जैक्टली। नर्सिंग का स्मॉलर वर्जन अगर हम कहे वो है, क्योंकि इसमें लाइसेंस नहीं होता, पर नर्स के नीचे भी एक पर्सन होता है जो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन केयर में होता है, ह्यूमन सर्विस में इन्वॉल्व होता है, तो ये वो वाला प्रोग्राम है। सर इसकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? 6.5 नो बैंड लेस देन 5, 60%, नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, ग्रेड 12। ठीक है, फिर सर हेल्थ केयर कुक वो डिस्कस हुई, ग्रेड 10 के ऊपर हम लोग बेस करके लेंगे, जिन्होंने कुलिनरी मैनेजमेंट की हुई है या आपकी होटल मैनेजमेंट कुकिंग के ऊपर बेस करके स्पेशलाइजेशन की हुई है, जिन्होंने आर्ट्स ग्रेजुएट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन जनरली ज्यादा जॉब के लिए फेमस नहीं है, वी कैन ऑलवेज टेक। डोंट एनकरेज कॉमर्स स्टूडेंट्स, डोंट एनकरेज PCM स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। और सर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके फादर का होटल का बिजनेस हो या ऐसा कुछ हो, तो उनको ये कर सकते हैं? या फिर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो? फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिशन वाले बच्चे कर सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए अगर हम लोग कहें कि इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं, तो हमारे लिए उनके पास 3 और प्रोग्राम देने के लिए है, which will be more preferred। ठीक है सर, चलो ओके। इसमें सर क्या स्कोर चाहिए हेल्थ केयर कुक में? 55%, no subjects below 50, 6.5 no band less than 5। और सर ये जितने भी आप कोर्स अपने डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, इन सब में सर जॉब के प्लेसमेंट रेशियो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 98% जितना इनको जॉब मिल ही जाता है कैंपस से? या मैडम हाँ 94% मेरी ग्रेजुएशन एब्जॉर्बेंस है, 94%। अच्छा और 6% जो स्टूडेंट है वो अपने सेकेंड ईयर ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन में चले जाते हैं। अच्छा, So this is something unique about my institution। ठीक है। हेल्थ केयर कुक का सर ये अच्छा प्रोग्राम है। इनको सर जॉब किस में मिलती है? हॉस्पिटल्स में मिलती है क्या? मैडम जहाँ हेल्थ जहाँ पे भी 2 स्टार ऑनवर्ड्स, 2 स्टार ऑनवर्ड्स, क्योंकि देखिए वहां पे होटल, वहां पे अगर मैं हॉस्पिटल की कुकिंग एरिया में भी बात करता हूँ, वहां पे भी स्टार कैटेगरी रहती है। तो सेम है, आप स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी ये कुकिंग रिलेटेड सेगमेंट्स आती है,
जहाँ पे ये जो कम्युनल कुकिंग रहती है, इंडिविजुअल है, फिर आपकी बहुत सारे अभी हायरिंग सेगमेंट्स में भी चली गई जहाँ पे इंडिविजुअल घर में भी कुक हायर करते हैं. दे आल्सो रिक्वायर द हेल्थ केयर कुक सर्टिफिकेट टू गेट ठीक है, ठीक है सर. चलिए सर, हैवी इक्विपमेंट ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का बताएं. ये हम लोग लेंगे ग्रेड 11 के ऊपर बेस करके. आई रिपीट, ग्रेड 11. लेकिन ग्रेड 11 मोस्टली हमारे यहाँ पे उतनी कंसिडरेबल फैक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रोग्राम ग्रेड 10 है, ग्रेड 11 है, ग्रेड 12 है. अगर हम लोग गौर करें कि इंटरनेशनल एरिना में अगर हम लोग ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, दे आस्क अबाउट 10 ईयर ऑफ एजुकेशन, 11 ईयर ऑफ एजुकेशन, 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो अगर 11 इयर्स ऑफ एजुकेशन में इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ग्रेड 11 आती है. तो हेवी इक्विपमेंट ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियंस, मोस्टली जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है मैकेनिकल के या साइंस बैकग्राउंड के, वो या डिप्लोमा वाले वो आते हैं. इवन कुछ स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के हैं विद ए 60% अबव इसको, दे आल्सो कम फॉर दिस प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है. डोंट एनकरेज कॉमर्स स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. ठीक है सर, समझ गए. इसमें सर क्या 60% नो लेस देन 50 और इसमें बैंड IELTS का स्कोर क्या चाहिए? इसमें आती है 55% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5. ठीक है सर. उसके बाद ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का? इसमें सेम जो कंटिन्यू केयर की जो रिक्वायरमेंट आती है सेम आती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और सेम फील्ड के स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे. और इसमें आपने जो कहा कि इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने किया हुआ है या अदर फैक्टर, दे कैन आल्सो बी गेट इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर एंड सेफ्टी प्रोग्राम. सर इसमें अपने केमिस्ट्री वालों को ले सकते हैं क्या? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये लोग भी शायद इसमें एकदम जैसे मैंने कहा कि पैरेलल एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मेडिसिन जो भी है, दे आर ऑल वेलकम इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स. बराबर. प्योर साइंस वालों को ले सकते हैं. ठीक है सर. इसमें क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट? और सेम दैट गोस टू कंटिन्यू केयर. इसका मतलब है 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50, 6.5 नो बैंड लेस देन 5. Power engineering. Power engineering is physics, chemistry, mathematics. 60%, 65% overall, no subjects below 50. I will repeat: physics, chemistry, mathematics. 65%, no subjects below 50. Relevant engineering programs are accepted. कंप्यूटर इंजीनियरिंग को मत लीजिएगा, सॉफ्टवेयर को मत लीजिएगा. हाँ सर, इसमें हम पावर में ना केमिकल है, फिर पेट्रोलियम है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी जाते हैं. बीएससी केमिस्ट्री जिन्होंने किया हुआ है, दे आर आल्सो वेलकम. एनर्जी एंड रिसोर्स रिलेटेड एनी इंजीनियरिंग सेगमेंट, दे आर ऑल वेलकम इन दिस प्रोग्राम. ठीक है सर. ये प्रोग्राम और इसकी रिक्वायरमेंट का हो गया. अभी सर हमें ये बताइए. मैडम अभी भी नहीं हुआ है मेरा. और इसके बाद हमारे पास डिप्लोमा है 2 इयर्स के. जी. एक है बिजनेस डिप्लोमा. बिजनेस सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है सेम रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस डिप्लोमा पर. ये 2 साल का मिलेगा. ये 2 साल का. यूथ केयर वर्कर, ये 2 साल का प्रोग्राम है. नॉन मेडिकल आर्ट्स, जिन्होंने आर्ट्स ग्रेजुएट किया हुआ है, मेडिकल ग्रेजुएट किया हुआ है, और साइकोलॉजिकल अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने इवन मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, दे कैन आल्सो कम एंड जॉइन दिस प्रोग्राम. ठीक है. यानी मास्टर किया है फिर भी इसमें कर सकते हैं साइकोलॉजी. अगर क्योंकि मेरे को रिलेवेंस चाहिए, अगर ग्रेड 12 का मेडिकल का स्टूडेंट्स है या आर्ट्स का स्टूडेंट्स है, कोई भी आ सकता है. GNM का स्टूडेंट है, नर्सिंग का आ सकता है. लेकिन अगर हम लोग मास्टर के स्टूडेंट्स को भी लाना है तो मेरे को रिलेवेंसी ढूंढना ही पड़ेगा. ठीक है सर. और 6.5 नो बैंड लेस देन 5 है इसका. 60% नो सब्जेक्ट्स बिलो 50. और लास्ट प्रोग्राम जो हमारी एक PG प्रोग्राम है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट. कोई भी ग्रेजुएट 55% वाला, 6.5 no band less than 6, they can apply. ठीक है सर. अभी हमें ये बताइए आप कि इन सब में आपकी जो है ट्यूशन फीस, मेरे ख्याल से आपके, मैंने देखा ज्यादातर $18,000 है, पर कुछ प्रोग्राम की बहुत ज्यादा है. इसको 34,000 और ऐसा भी है. मैम 34 होगा नहीं. छोटा सा क्विकली रिकॉर्ड. PG program business management 18,000, business diploma 17,000 per year, youth care 16,800 Canadian dollar per year, administrative assistant 16,000, agriculture equipment technicians 24,500.
अच्छा, ये इसका 24,500 बराबर। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बुक, स्टडी मटेरियल, इक्विपमेंट, इंटरनेशनल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस का सर 18,000 कैनेडियन डॉलर, बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियंस का 18,000, बिजनेस सर्टिफिकेट का 17,000, कंटिन्यू केयर का 17,000, हेल्थ केयर कुक का 18,000, हेवी इक्विपमेंट ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियंस का 22,000, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का 18,000 और पावर इंजीनियरिंग का आ गया 20,000। 24,000 20,000 पावर इंजीनियरिंग 20,000। ठीक है सर। तो ये चलिए। हमारी और प्रोग्राम सर जीबीएम का 18,000। 18,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है सर। चलिए, ये फीस का सर क्लैरिटी आ गया। प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट का क्या बैकग्राउंड पे हम भेजे, ये क्लैरिटी आ गया। अभी सर मुझे दूसरा ये क्लैरिटी चाहिए कि ये अपनी जो भी कॉलेजेस है, जैसे ग्रेट प्लेन्स है, कम्बरलैंड है, पार्कलैंड है, ये सब पार्कलैंड में हमने रिक्रूटमेंट बहुत साल हो गए पर किया हुआ है। उस टाइम पे सस्केचुआन पॉलिटेक्निक नहीं होती थी तो पार्कलैंड का हो जाता था। अभी कंपटीशन आपके और सस्केचुआन पॉलिटेक्निक के बीच में है, वो मैं बता दूं। तो अभी सर ये है कि ये जो जगह है, छोटी छोटी सिटीज है, तो इसके बारे में सर बताइए कि इसमें हम ये सिटीज, पहले तो ये जगह कैंपसेस के नाम सिटीज, वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, बच्चे वहां पे जाएंगे तो क्या उनको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उनको फूड का प्रॉब्लम नहीं होगा, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सर हमें बताइए। एकदम। और कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी? हाँ। एकदम मैं सब पे आता हूँ एक एक करके। तो पहले जो कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, वो पॉइंटर्स ये है कि रीजनल कॉलेज सिस्टम, मैंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके संग हो सकता है कंपटीशन की बात आती है, जिनके संग हो सकता है कि कहते हैं कि वहां पे यूनिवर्सिटी है आपका, तो रीजनल कॉलेज है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, रीजनल कॉलेज सिस्टम्स को अभी कनाडा की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जा रहा है। हमारी जितने भी कॉलेजेस है, हमारी कुछ दिन पहले हमारी जो ओरिएंटेशन हुई थी, मैं ओरिएंटेशन का लिंक आपको भेजूंगा। ओरिएंटेशन की जो लिंक है, वहां पे हमारे जो इंटरनेशनल एडवाइजर है क्रिस्टी स्लेटर, उन्होंने एक चीज को काफी बढ़िया तरीके से बताया कि एक स्टूडेंट जब सस्केचुअन में पांव रखता है, हमारे रीजनल कॉलेज में जो कैंपस में पांव रखता है, 15 दिन के अंदर उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। 15 दिन के अंदर अंदर? मैडम मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लिंक को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ओके। उनके मुंह की बात है, 15 दिन के अंदर, जो दूसरी जगह पे क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारी जो सिस्टम जो कहती है, इट इज एडेप्टेबल सिस्टम। एडेप्टेबल सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ पे भीड़ नहीं है, तभी स्पेशल केयर है। जैसे मैंने कहा, मेरा क्लासरूम साइज है 12 से 15। अभी हमारे यहाँ पे ये देखिए 16 जन है, तो 16 जन का मैं चेहरा देख चुका हूँ। हम लोग लास्ट 1 आवर से देख रहे हैं। तो रास्ते के बीच में अगर कहीं पे भी दिख गए ना, मैं बोल यार कहीं देखा है इनको, कहाँ पे देखा है, दैट्स नॉट मैटर। लेकिन अगर हम लोग रेगुलरली 4 से 5 महीने रेगुलरली ऐसे बात करें ना, अच्छा इनको तो हम जानते हैं। सो मेरा फैकल्टी मेरे स्टूडेंट्स को उस हिसाब से जानता है। और फैकल्टी कौन है? दे आर द इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, दे आर द जीएम, दे आर द सीईओ, they are the MD, and they are coming and giving you where to get a job, because they are the one who actually creates the job. तभी आज कहते हैं कि 98% of my students know where job is even before they complete their graduation. करेक्ट। ये आपको आपने जिनका भी नाम लिया है वो नहीं दे पाएंगे, पहली बात है। कोई यूनिवर्सिटी आपको दे नहीं पाएगा। और छोटे छोटे जो सिटी कहती है, मैं एक छोटी सी एक बात कहता हूँ आपको। आईआईटी का नाम सबने सुना हुआ है मेरे हिसाब से, राइट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। खड़गपुर का नाम सुना है? आईआईटी खड़गपुर नहीं सुना है तो हम लोग इसको करेंगे। तो एक चीज मैं बताता हूं कि आईआईटी इज नॉट फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ खड़गपुर। खड़गपुर इज फेमस फॉर बीइंग हैविंग आईआईटी कैंपस। जितने भी बच्चे खड़गपुर से आईआईटी पास करते हैं, कोई खड़गपुर में जॉब नहीं करता। दे मूव अक्रॉस द सेम थिंग। They are going for their education. They are not going for their final settlement. And the subjects and the content is driving them to that particular campus or city for the educational time only. And that is supported by the part-time job. तो उसके बाद क्या हुई? आपने SIN पे अप्लाई कर दिया, आपको कोई भी सिटी में रोक है सस्केचुअन की आप यहाँ पे रह नहीं सकते? नहीं। You can stay at anywhere। 3 साल पूरी फेडरल आपको कोई बोलेगा कि वहां पे मत जाओ, आप यॉर्कटन कैंपस से पास आउट है? कोई नहीं बोलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस।
और सबसे अहम बात आती है कॉस्टिंग। यू आर गेटिंग द चीपर वर्जन ऑफ योर स्टे इन एलीट लाइफस्टाइल, क्योंकि सस्कैचुअन की लिविंग कंडीशन को एलीट माना जाता है। So this is the only reason ये जो पॉपुलैरिटी आ रही है रीजनल कॉलेज की, इट इज अनचैलेंजेबल। सर ये समझ गए कि पढ़ाई करने के बाद जरूरी नहीं स्विफ्ट करंट में रहो या यॉर्कटॉन में रहो, वो कर सकते हो, पर जितने टाइम वो लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, क्या उतने टाइम उनको 1 साल 8 महीना 9 महीना, उतने 8-9 महीने में उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी? क्या उनको इंडियन स्टूडेंट मिल जाएंगे? क्या उनको रहने के लिए शेयरिंग अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे? क्या उनको वेजिटेरियन फूड या फिर नजदीक में मॉल वगैरह खाने का, ये सब वो मेरा बेसिक क्वेश्चन है। एकदम एकदम। तो क्वेश्चन की वैलिडिटी में पहले ही अपने बात से जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं लिंक आपको शेयर करूंगा जहां पे हमारे जो इंटरनेशनल एडमिशन मैनेजर है कृष्ण स्लेटर, काफी क्लियरली कहा आप सस्कैचुअन में पावर रखें, आपके कैंपस में 15 दिन के अंदर आपको वहां पे जॉब मिल गई पार्ट टाइम। करेक्ट, बात खत्म। दूसरी जो आती है, मोस्टली ये जो मॉल कल्चर है खाने वाली, ये हमारी इंडियन ऑडियंस या इंडियन मतलब हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉरेन पीपल डजंट, दे डजंट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ लग्जरी एक्सपेंस। जो हमारे कुछ दोस्त लोग रहते हैं बड़े बड़े मेजर शहर में, सेल्फी ले ली, पीछे एक मॉल है, लिख दिया इट्स माय लाइफ। दैट वाज नेवर बीइंग देयर लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ स्टार्ट होती है वहां से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर 4 जन स्टे किए हुए हैं शेयरिंग में। सो देयर इज द पॉइंट कि आपको लिविंग मिलती है किस हिसाब से, क्योंकि हमारी जो भी रीजनल कैंपसेस, जो भी कैंपसेस है, दे मूव्स इन अ साइकिल। साइकिल किस हिसाब से, जैसे कि इस बार सोच लीजिए प्रेक्षा मैडम इज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कम्बरलैंड कॉलेज मेलफोर्ड कैंपस, तो उनके पास एक पार्ट टाइम जॉब है, वो एक जगह पे लिविंग है। 1 साल बाद वो छोड़ देंगी, तो अभिषेक 1 साल बाद वहां पे ज्वाइन कर रहा है। सो अभिषेक विल स्टार्ट टेकिंग द साइकिल। मैडम ने छोड़ा वो जॉब, अभिषेक ने ले लिया। मैडम ने वो जगह छोड़ा, अभिषेक वहां पे रहने लग गया। सो दिस इज द साइकिल, इट्स मूव्स, एंड दैट व्हाई इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट, बिकॉज जो आपको रहने दे रहा है, दे आल्सो नोन अबाउट द स्टूडेंट मेंटेलिटी। जो आपको जॉब दे रहा है वो भी जानता है 1 साल बाद अभिषेक की जगह कोई और आके ये जॉब लेगा। ठीक है सर, समझ गए। So that is the easily adaptable, क्योंकि देखिए एक जगह पे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके नौकरी लेना और एक जगह पे ऑलरेडी आपके लिए पैरेलल इंट्रोडक्शन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है सर, समझ गए। तो यानी यॉर्कटॉन में, और सर हमारे तो कोई बच्चे नहीं हैं, पर हम आपसे ही अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे कोई कंपनी करा के दो, ये तो आपके तो सर बहुत सारे होंगे, तो हम फिर आपसे ही करेंगे। आपके गुजरात से बहुत जन गए हुए हैं मैडम, नो वरीज। ठीक है सर, तो ये हो गया क्लियर सर। यस, इसमें वेजेस, हाँ, वेजेस पे आते हैं $11 से $12, कॉस्ट ऑफ लिविंग 1000 to 1200। ठीक है सर, चलिए ये काफी क्लैरिटी आ गई है, और मैं एक ग्रुप व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ बना दूंगी। यहाँ पे छोटा सा 2-3 बात है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि वेजेस, तो यहाँ पे बहुत जन आएंगे इतना कम, ये बहुत जन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, सोचते हैं यार इतना कम। तो मेरे ये कम के पीछे की बात कहता हूँ, आपको मैंने दिखाया मीडियन आफ्टर टैक्स पर फैमिली, राइट। तो आप अगर किसी सिटी के बारे में सोच रहे हैं जहां पे 16, 17, 18 या $20 मिलता है, वहां की सेविंग रेशियो है इज 2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वहां की सेविंग रेशियो इज $2। सस्कैचुअन में 12 के अगेंस्ट में सेविंग रेशियो इज $2। सस्कैचुअन में जब वेजेस पहुंचती है 16 में, तो उनकी सेविंग रेशियो इट कम्स 2 + 4। लेकिन अगर कहीं और पे सेविंग अगर जाती है आपकी वेजेस 24, उनकी सेविंग रेशियो रहती है 2 पे ही। This is why Saskatchewan is also known as the place where you can save for big. करेक्ट सर, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही कम है इस हिसाब से, काफी कम है, काफी कम है। और 5 दिन क्लासेस रहती है आपकी, ओके, मंडे टू फ्राइडे 8:30 to 5 PM। That's also definitely depend upon few of the ratio। तो हम लोग एजुकेशन पे काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम ऑप्शंस है वो मिल जाती है, ऑन कैंपस नहीं मिलती।
हमारी ऑन कैंपस स्टेइंग भी नहीं है। हम लोग आपको लिंक भेज देंगे, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड बजट आप लोग ले सकते हैं। कितनी चीप हो सकती है स्टेइंग? 600 से $800 के अंदर आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। 3 फ्रेंड मिलके एक अपार्टमेंट ले लो, $260 to $270 पर मंथ के हिसाब से आएगी। ठीक है सर। तो दिस इज मोस्टली, हम लोग अगर बात करते हैं तो दिस इज सचकाशवन। सचकाशवन की कुछ और खूबसूरती की बात में भी हम लोग कर ही सकते हैं, एंडलेस। एक छोटा सा चीज बताता हूँ, कनाडा की सबसे फेमस सिटी कौन सी है आपके लिए? फेमस तो सर टोरंटो ही है। मैडम क्यों फेमस है वो? सबको वहीं पे जाना है, पॉपुलेशन ज्यादा है। मैडम मेरा कहने का यही है कि फेमस क्यों है। अगर मैं कहता हूँ पॉपुलेशन रीजन है फेमस का, तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिविटी है। और आपने कहा फेमस क्यों है मैडम? पॉपुलेशन की वजह से देखिए ऐसे तो सबको आप पूछोगे तो सब नाम वो ही सुना है, जो सबको वही जाना है, राइट? आप ऐसा पूछे घूमने के लिए इंडिया में जैसे जगह कौन सी अच्छी है तो सब गोवा ही कहेंगे, राइट? तो वैसे हमें सर घूमने का नहीं पता है कि खूबसूरत जगह कनाडा में कौन सी है, आप बता दीजिए। नो मैडम, घूमने का मैं एकदम बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि आपने कहा, इट्स वेरी ट्रू कि पॉइंट ऑफ थिंकिंग हमारी रहती है कि द मोर वी हर्ड अबाउट, करेक्ट, द मोर वी हर्ड अबाउट, द मोर वी स्प्रेड अबाउट, एज सिंपल एज दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कनाडा की एक ऐसी सिटी है जिसको पेरिस ऑफ कनाडा कहा जाता है, वो कौन सी सिटी? आई डोंट नो सर। देखिए यहाँ पे ये जो सवाल रहते हैं ना, ये सवाल की बहुत सारी रियलिटी आती है। तो जैसे मैंने आपको मेरे दोस्त से मिलाया था, छोले भटूरे वाले, राइट? इसने मेरे को इंडियन इकोनॉमी की पूरी रिफॉर्मेशन चेंज करवा दी थी। उसी ने मेरे को इनवाइट किया कि आप कभी भी हमारे वहां पे आ रहे हैं तो मेरे घर पे जरूर आइए। तो मौका मिला, पहुंचा उसका घर। तो जब नॉक किया तो उसका लड़का दरवाजा खोल के मेरे से बोलता, वेलकम टू द पेरिस ऑफ कनाडा। तो मैंने कहा, इसके डैडी ने तो मेरी इकोनॉमी चेंज करवा दी थी, अब बेटा मेरा ज्योग्राफी चेंज करेगा, चुप रहो। तो मैं चुप रहा। तो मैंने जस्ट कहा, आई हैवंट सीन ए आईफेल टावर हियर। तो वो मुस्कुरा के बोला, वेलकम टू पेरिस ऑफ कनाडा, और वो अंदर चला गया। तब उसके फादर आए और उसने बोला, इंडीड यू आर इन पेरिस ऑफ कनाडा। तो मैं कुछ बोला नहीं, उसके मुंह की तरफ देखा, अंदर से एक आवाज आई, भाई बता दे क्यों। तो खूबसूरत की अगर मैं जजमेंट की बात करता हूं, तो उसने मेरे को काफी रियलिस्टिक तरीके से बताया कि देखिए, आईफेल टावर, पेरिस की बात करते हैं तो आईफेल टावर डेफिनेटली दिमाग में आ जाता है। और अगर हम लोग ब्यूटी की डेफिनेशन करते हैं तो जो एक्चुअल डिफाइन करता है वो देखता है कि गर्मी में भी इसकी खूबसूरती है, बरसात में भी इसकी सिमिलर खूबसूरती है, विंटर में जब स्नो गिर रहे हैं तब भी इसकी सिमिलरिटी खूबसूरती है, कोई अलग नहीं है। द सेम थिंग गोज टू द ब्रिजेस of Saskatoon. Saskatoon is the city which is known as the Paris of Canada or Paris of Piracies because of its scenic bridges. The similarity, they say that it's hypnotize, it's attract, it's have the facts and figures to recollect a particular phases about their lifestyle, their living conditions, their movement overall. तो देखिए ये वाली चीज भी, क्योंकि मेरे को जानना है मेरे प्रोविंस के बारे में, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। ऐसी कुछ कुछ फैक्ट्स हमारे पास रहती है जब हम लोग कुछ चीज को ज्यादा इन डेप्थ घुसने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगेन आई से दैट Saskatchewan is my baby and I know how to take care of my baby. I'm sharing few and facts of my baby with you, hoping high that you are going to take care of my baby equally the way I am taking care of. ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, मैं मेरे को एकदम फैक्ट और ऑनेस्ट आप जवाब देना। अगर 6.5 5.5 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम क्या ये कॉन्फिडेंटली कहे कि सस्केचुआन में वीजा रेशियो अच्छा है या पॉसिबल है? क्या ऐसे केसेस हम आपके लिए स्पेशली लेना चालू करें, आपकी कॉलेजेस के लिए, ये प्रोग्राम्स के लिए? आप ये बताइए। एकदम छोटा सा फिगर में शेयर करता हूँ। नॉन एसडीएस इज 51 to 52%. सेमी एसडीएस का मतलब है स्टूडेंट्स हु पे द फुल ईयर फीस हम भरा देंगे। मैं उसका रेशियो आता है मेरे पास 58 to 60%, और एसडीएस केसेस की मेरे पास रेशियो आती है 70 to 71%। अगर आपको अब लगे कि मेरी रेशियो सबसे हाई है, डेफिनेटली आप मेरे को स्टूडेंट भेजेंगे। ठीक है सर, चलिए अगर कोई 6.5 5.5 वाला बच्चा आता है तो विल डेफिनेटली टेल हिम कि सस्केचुआन में कर सकते हैं, वहां का वीजा रेशियो कंपैरेटिवली अच्छा है। ये सिर्फ 5.5 या 6 वाले बच्चे की बात नहीं है। मैं अगर सबके लिए भी बात करूं,
आपको भी मालूम है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स, बट डेफिनेटली देयर इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो इंडिया रिटर्न आ जाते हैं इवन कंप्लीटिंग देयर 2+3, 2 साल का स्टडी और 3 साल का वर्क परमिट, हम सबको मालूम है, देयर इज नो डिनाइल अबाउट इट। रेशियो का कितना हाई है आप लोग गूगल्स में सर्च कीजिए। क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, अगर इस चीज पे हम लोग गौर करें, इट्स ऑल हैव टू कल्टीवेट फैक्टर्स कि जहां पे जा रहे हैं वहां पे जॉब है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जॉब है, या वो कितनी कैपेसिटी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा स्टैम्प दे रहा है डेफिनेटली उनके पास 3 इयर्स का स्टैटिस्टिक्स सामने रहता है, तभी बहुत सारी ऐसे केसेस रहती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, रिजेक्ट हो जाती है। अनपैरेलल रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं, क्यों जाए ये प्रोग्राम लेके वहां पे, क्यों जाए, डिमांडिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स। सचकैशवन में अभी जो प्रीवियस पॉलिसी थी कि स्टूडेंट किसी और प्रोविंस में जाके पढ़ रहे हैं उसके बाद आ जा रहे हैं सचकैशवन में अपना 2nd ईयर पढ़ाई करने, द थिंग्स हैज चेंज्ड। आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, यू हैव टू कम इन स्टूडेंट रेशियो। फिर 1 साल, जो 5 साल आप पहले करने वाले थे वो अभी क्यों नहीं, as simple as this. So nothing to be go against with other provinces, all provinces are good, Canada education system is really good, they are appealing, but मैं अपने province के बारे में इतना कहूंगा, certain factor we are unchallengeable. ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर, आज बहुत Thank अच्छी you. ट्रेनिंग रही। Thank you ma'am, sir. thanks to all of you for being patiently. मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप लिंक में देख लीजिएगा, सबके संग शेयर कर दीजिएगा, बहुत और भी कुछ पॉइंट्स है, और एक और लिंक शेयर करूंगा, सचकैशवन कितना खूबसूरत हो सकता है उसके लिए। मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ही क्रिएट कर देती हूँ, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना, तो ये मैं ईमेल इनको शायद फॉरवर्ड करूँ, ये पढ़े नहीं पढ़े, ग्रुप में होगा तो डायरेक्टली ओपन करके मैं देख। कर देता हूँ, मैं कर ठीक है, देता हूँ, वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अपेक्षा, मुझे 5-10 मिनट बात करनी है। हाँ।